आवाज आ रही है भाई? यस सर। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको जरा बता दो अगर दिख रही हो तो। दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। Last time, in last lecture, I tried to tell you something about the transfer of packets from source to destination, which was involving link layer, physical layer, and network layer or IP layer. So 2 or 3 layers were involved in transfer of packet from source to destination. I just given you a rough idea and some number of terminologies which came during discussion. So I try to explain some of them. Today also we'll see some of the terminologies and then topology of the network, and then OSI reference model and TCP/IP reference model, which is generally used in networking. And then if the time will remain, then we'll see something related to some network parameters, like delay, packet loss, throughput, and overhead. So this is what I have planned today. Let us see first some of the terminologies. Usually the first one, which perhaps I should have told you last time, but if that, which we are going to study, so a very frequent terminology may be using is internet. Okay, so internet. So it's a connection of networks. Network of networks. Interconnected networks. Interconnected networks. Basic idea is that what is a network? If you try to connect two computers, that form a network. A computer network, if you can connect two computers and can transfer message from one computer to another computer, that's a network. Okay. Now it can involve many computers, so that forms a single network. So it is something like a network N1. So we say now with N1, then you have another network N2. Okay, another network N3. So we talk in terms of network, and then connecting these networks through devices. Generally, we name them router. Okay, so networks are connected to other networks, generally through some devices, which usually named as routers. Okay, or you can say that networking devices, if you don't want to name them as routers specifically, then can say networking devices. Okay, so that router or networking device, networking devices, and maybe modem or we are connecting some
So this is forming internet, right? So that is forming that term internet. And how we are, as I said, how we are forming a network, we are connecting two computers. That forms a network. And yesterday I shown you that if we want to connect the third one, so we can use wire and can connect. But a better way of doing it, and then we want to connect fourth one, and then we can connect like this and like this. But the better way is we use a device which we used to call a switch. Another name which is used to connect this type of, used to do networking, this device which we are saying is switch. Sometimes we also use our name hub. Hub is also used for that. So hub or switch, right? So instead of connecting in this fashion, we are connecting in this fashion, in which a dedicated device, which we say is a networking device, is connecting the computers. Okay. And that forms a network. So this is our network, right? This is a network. I think I already told you something about protocol. Define protocol. We'll be studying in the whole network different type of protocols, which is a set of rules which are used to define the format. It is a set of rules. Used to follow whenever two entities are communicating with each other. Okay, and those rules generally consist of format and the order in which the message should be transferred. Like as I said, format means when sender is sending, it is sending, say, an integer. So where is the least significant bit? Where is the most significant bit? That need to be specified. Okay. So then only the other side can understand. Language भी हम लोग use करते हैं so that the other person can understand the language. But also contains a particular format. तो format है, order है, और फिर action. ये मैंने बताया था आपको last time. Action. So that's what should be done to transfer the packet, or what should be done once the packet has been received at the receiver. So how we should deal with that packet, what action should be taken. Okay, so that is now sometime if you see the classification in network functionalities, so broadly we can classify in two portions. One is for transfer of packet from source to destination, the transfer of a packet. And once the packet, the other portion is once a packet reaches to a node, then how that packet should be dealt so that it can be transferred to a particular application. Okay, so to a particular application, how the packet should be transferred once it reaches to a particular node. Okay, so yeah, right. So functionality wise, can divide it into that type of two portions. One, if you see the components, if you see the components of the network, I told you the visible components are your nodes, the computers which are connecting. Then wire, networking nodes, these are components of the network. And the
why we are doing all this? To transfer the message from one computer to another computer. So that message is another component of the computer network, which is to be transferred. Okay, so message, बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं, और मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं हम पैकेट के फॉर्म में. So packet you can consider is another component of the computer network. So these are some components. Can say that others are visible, and message and packet you generally can only see using particular tools. Okay, and obviously message, packet, and finally packet is made of a set of bits. So number of bits combined together form a packet. Okay, as far as the network is considered, they are not generally interested unless until you say that we have to do some security type of things. We are generally are not interested in what is inside the message. Okay, message, and the network is interested in transferring that message. Okay, the network is interested in transferring of the message. Okay. ये फोन परेशान कर रहा है, इसको जरा पहले मैं साइलेंट पे डाल दूं. सॉरी, बार जो है. So what I was trying to tell, कि message, then packet, and packet is formed through group of bits. So that packet, and packet is इसका कर्सर इधर उधर चला जाता है और दिखता नहीं. Packet, and that is group of bits. And that's packet. Okay. So finally we are trying to transfer the bits. Combining them is forming the packet, and then combining them forming the message. As I said, generally, as far as the network is concerned, we are not interested in what is inside the message. आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल के अंदर क्या है, हम जनरली इंटरेस्टेड नहीं होते. हम इमेज ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉइस ट्रांसफर कर रहे हैं, बट व्हाट इज दैट कंटेंट, वी आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड unless until something is involved, which we used to say security. नेटवर्किंग में जब भी सिक्योरिटी आती है तब हाँ हम जरूर है कि भाई क्या है इसके अंदर, व्हाट इज इनसाइड द मैसेज. अगर हमें मैसेज लेवल तक स्कैन करके सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, अदरवाइज समटाइम इन सिक्योरिटी आल्सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन what is inside the message. We are generally interested in finding out कि यार ये मैसेज फेक ना हो, ये मैसेज कोई जो भी बंदा पैकेट को देख रहा है तो वो देख ना पाए, और बाकी चीजों में इंटरेस्टेड होता है सिक्योरिटी. बट समटाइम इन सिक्योरिटी वी आर इंटरेस्टेड कि भाई मैसेज के अंदर क्या है. सो दैट इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क. तो इधर ये आप इस तरह से देखें नेटवर्क को, ये कुछ कंपोनेंट्स है. सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग मैंने आप लोग को बताया था कि क्या है, आरएफसी के बारे में बता दिया था. ओके, तो बाकी हाँ एक और टर्म है जो बहुत यूज होता है, ये है 3 टर्म जनरली यूज. 2 टर्म बहुत यूज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लैन. इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. और WAN. Wide area network. A difference, and then there is another term which is these days used, which is known as MAN, Metropolitan Area Network. ओके, यूजली अगर लैन है तो हम कहते हैं डिस्टेंस कितनी है उससे डिफाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. 3 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक लैन जनरली हम लोग बोलते हैं. और व्हेन एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक कंटेंट
कंट्री जब हम कनेक्शन है हमारे, तब उनको हम वैन जनरली यूज करते हैं। और मैन में आ गया आपका 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ओके, और भी ज्यादा हो सकता है, थोड़ा 40 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको सुनने को मिलेंगी। और तो अब आते हैं टोपोलॉजी पे। नेटवर्क की टोपोलॉजी, एक दो टोपोलॉजी तो मैंने आप लोग को बता ही दी थी कि पहले जो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि भाई अगर आपका एक, इफ यू हैव टोपोलॉजी पे आते हैं, टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क कि अगर हमने एक फर्स्ट टोपोलॉजी है जो कि ऑब्वियस है कि आपने एक कंप्यूटर N1 लिया, इसको कनेक्ट किया, एक तार लगा के N2 से कनेक्ट कर दिया, फिर इसको थर्ड हमें कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो एक और तार लिया और कनेक्ट कर दिया, और फिर हमें चौथा कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो अगेन वी हैव टेकन वायर कनेक्टेड N1, N2 और N3 को करना है तो ये कनेक्ट कर दिया। But I told you कि okay, in this is known as mesh topology. Mesh topology. Obvious problem of mesh topology is that a dedicated, the advantage is that there is a dedicated connection between two nodes and you do not need to do anything. नेटवर्किंग में अगर आप नोड टू नोड कनेक्शन कर दें तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है पैकेट बनाने की और ये सब करने का, पूरा नेटवर्क करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधे N1 से उठाया, N2 को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ है। दैट नो शेयरिंग, इफ देयर शेयरिंग आती है तभी नेटवर्किंग की जरूरत है, तभी आपको पैकेट बनाना है या सर्किट स्विचिंग करनी है कि क्या करना है, सोचना पड़ेगा। ओके, व्हेनेवर द रिसोर्सेज व्हिच वी आर यूजिंग are shared among the nodes, among the users, तभी आपको जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में भी क्या है, सीपीयू है, एक है, दो है, शेयर कर रहे हैं आप प्रोसेस के बीच में, तभी तो शेड्यूलिंग और ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ी। वरना क्या है, अगर एक ही चलाना है तब कोई जरूरत ही नहीं है शेड्यूलिंग की, नहीं, बहुत सारी चीजें। तो नेटवर्किंग में भी इफ यू हैव अ डेडिकेटेड कनेक्शन, क्या जरूरत है पैकेट बनाने की, फिर उसके ऊपर एक एक पैकेट भेज के उसको कलेक्ट करने की क्या जरूरत है। तो सीधे एक तरफ से मैसेज लिया और दूसरी तरफ पहुंचा दिया, क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन है और ऑलवेज अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज व्हेन द कनेक्शन व्हिच वी आर यूजिंग इज अ शेयर्ड कनेक्शन, द रिसोर्सेज व्हिच वी आर यूजिंग टू do the transmission of the message is a shared resource. मैंने एक चीज और सोची है कि हम लोग 1 घंटा करके फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे 5 मिनट का, क्योंकि पूरा 2 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो कोशिश करूंगा कि 1 घंटे बाद बीच में 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक कर लें, फिर उससे थोड़ा ठीक है। मेरे को भी थोड़ा गले में आराम मिल जाता है, और वैसे भी लेक्चर सुनते सुनते जो एक तरह का उबन होने लगती है वो भी कुछ कम हो जाती है। एनीवे, सो mesh, this is mesh topology, and obvious problem of mesh topology is कि वायर बहुत चाहिए आपको। जब भी आपको एक नोड कनेक्ट करना है तो आपको इतने सारे वायर चाहिए। मीन्स अगर आप n नोड कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको n-1 वायर चाहिए, ठीक है ना। 4 नोड है, कितने वायर हो गए, 1 2 3, कितना हो गया, 3 4 5, n+1 हो गया ना, n+1 वायर चाहिए। ओके, लेकिन वायर ऐसा सेट फिर भी आप अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि नोड के ऊपर, ऑन ए नोड, हाउ मेनी पोर्ट्स, आपको पोर्ट्स चाहिए। और अगर आप 4 नोड है तो आपको n-1 पोर्ट चाहिए,
और ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मशीन के ऊपर एक या दो पोर्ट जनरली हम रखते हैं, सर्वर है तो 3-4 पोर्ट रखती है बस, इससे ज्यादा नहीं होते। So when you are designing the laptop, desktop, servers or any machine, then you cannot put. Okay. So dedicated device use करके हमने कहा कि एक पोर्ट की प्रॉब्लम को डिवाइस पे शिफ्ट कर देते हैं कि इस पे हमने पोर्ट बना दी और इसको बोला या तो ये स्विच है या ये हब है। ओके। सो मैश के बाद दूसरी टोपोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं स्टार। यहाँ पे हमने N1 कनेक्ट कर दिया, ये स्विच या हब है जिसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स है 4 है, और जनरली मिनिमम 4 पोर्ट तो रहते ही है स्विच में या हब में। N2 को कनेक्ट किया, N3 कनेक्ट किया, N4 कनेक्ट किया। यस, वी नीड टू फाइंड आउट कि how many machines we want to connect to one switch or one hub. That we need to. Okay, and then we can purchase that machine of 4 ports, 8 ports, 16 ports, 24 ports, 48 ports, 96 ports, like that. Okay. So this is known as star topology. तो स्टार टोपोलॉजी में नंबर ऑफ वायर कम हो गए, और अगर if there is a failure in the connection like N1 से स्विच का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, so other nodes are not going to be affected. The only problem is in star topology, if this central जो आपका ये स्विच है, अगर स्विच या हब खराब हो जाता है, in that case, yes, the communication is broken. And that is the only problem. Okay, but that's fine. कुछ माल फंक्शन करता है स्विच अगर, या तब ठीक है, उतना बिहेवियर होता है। लेकिन हमको अब पोर्ट नहीं चाहिए मशीन के ऊपर, एक पोर्ट है। और ऐसा सेट कि अगर आपके पास एंड होस्ट है, सर्वर नहीं है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो जनरली उस पे एक आपको पोर्ट मिलेगा जो कि वायर से कनेक्ट होगा और एक वायरलेस वाला, बस इतना ही रहता है। थर्ड टाइप की टोपोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, इन विच वी हैव कनेक्टेड स्विचेस। तो एक स्विच हमने लिया, इस स्विच से फिर दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दिया। ट्री टोपोलॉजी का बेसिक आइडिया है कि जो एक रूट स्विच बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर स्विच। और कोर स्विच से हमने कुछ स्विचेस कनेक्ट किए जिनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डीएस, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से फिर एक और हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सिस स्विच, एक्सिस स्विच। एक्सिस switch. Okay, we can connect access switches. Access switch, and then with the access switch can go on connecting nodes. Node connect कर सकते हैं. So this is known as tree topology. Node connect कर दिया हमने. Okay, so this is tree topology. But please remember, I am connecting nodes to the axis switch, but that's not the limitation कि आप केवल axis switch से ही node connect कर सकते हैं. No, distribution switch से भी आप node connect कर सकते हैं. Okay, आपको नोड कनेक्ट करना है, कंप्यूटर कनेक्ट करना है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू नीड दैट टाइप ऑफ पोर्ट ओवर द स्विच. Generally, when we are connecting a switch to another switch, the type of the port is different, and when we are connecting a switch
to a node, the type of the port is different. That is the only thing. हालांकि आजकल बहुत थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि पोर्ट भी ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं या नेगोशिएट करके या आप नोड से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो उसको चेंज कर लेता है पोर्ट के टाइप को. बट एनीवे इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें स्विच से जब स्विच कनेक्ट करना है तो थोड़ा सा अलग तरह का पोर्ट चाहिए होता है. पोर्ट वैसे ही है, वही टाइप का भी हो सकता है, बट उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. और यूजली जब हम स्विच से स्विच को कनेक्ट करते हैं तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा रहती है. और हम ये एक मैं आपको लैन एनवायरनमेंट बता रहा हूँ, वैन नहीं है ये. ओके, वैन जनरली हम लोग जब बात करेंगे लैन एनवायरनमेंट की ही बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मैन और वैन में जब करते हैं तो फिर डेडिकेटेड लाइन डाल के और डेडिकेटेड डिवाइस यूज करते हैं. बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेंगे लैन, जो मैंने बताया, और लैन को कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्शन लैन से. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, यू कैन कनेक्ट नोड. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि स्विच टू स्विच जब कनेक्शन है तो जो वायर है वो अधिकतर फाइबर यूज होता है आजकल. जब हम स्विच से स्विच कनेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूल नहीं है कि फाइबर ही यूज होगा, यूटीपी केबल भी यूज होता है. जनरली दो टाइप के केबल यूज करते हैं हम. केबल अगर यूज कर रहे हैं तो फाइबर या आपका यूटीपी केबल. तो यूटीपी केबल में डिस्टेंस की लिमिटेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम यूटीपी केबल की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं होती. ये ट्री टोपोलॉजी जो बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्री टोपोलॉजी इज द टोपोलॉजी व्हिच इज जनरली यूज्ड इन लैन दीस डेज. यही सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी है लैन में जो आजकल यूज होती है. ओके, सो यूटीपी अगर आप यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस की लिमिटेशन है यूटीपी में कि आप जिस स्विच से भी किसी मशीन को कनेक्ट करेंगे या एक स्विच से दूसरा स्विच भी कनेक्ट करेंगे यूटीपी पे, तो 100 मीटर से ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते हैं. 100 से थोड़ा सा कम ही रखते हैं, 90 तक जनरली रखते हैं, बट 100 की यूजली लिमिट रहती है मैक्सिमम. 100 से ज्यादा करेंगे तो आपका सिग्नल गड़बड़ा जाएगा. देन यू विल नॉट बी एबल टू, कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, आपका रिसीवर साइड पे दिक्कत हो जाने लगे. तो सेफर साइड 100 या 100 से कम रहती है डिस्टेंस इन वायर. ओके, फाइबर किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर. स्विच जब हम कनेक्ट कर रहे हैं फाइबर से तब. और इसके अलावा फाइबर तो आप इंटरकॉन्टिनेंटल भी बिछाते हैं, पर वहां पे फिर स्पेशल डिवाइस जो चाहिए होती है आप कनेक्ट कर रहे हैं. पर स्विचेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो जनरली 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक भी. आई थिंक नंबर डिस्टेंस 40 से ज्यादा वाला देखते हैं कहीं पर अगर होगा तो. जब हम लोग स्विच की कुछ बात करेंगे फाइबर का कुछ, तब उसमें लिखा है. बट एनीवे 40 किलोमीटर तक का तो उसको ध्यान है. ओके, सो किलोमीटर्स में डिस्टेंस रहती है. फाइबर का ये एडवांटेज है. कि आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. लाइक कंप्यूटर सेंटर से आपको तिलक हॉस्टल तक ले जाना है, तो हमारा जो नेटवर्क है कंप्यूटर सेंटर से जो आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का स्विच है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर तक, और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर से तिलक ऑस्ट्रेलिया, पटेल ऑस्ट्रेलिया, मालवीय ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो ये क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो सब जगह फाइबर यूज किया है. ओके,
तो कनेक्शन करने के लिए स्विच टू स्विच, अगर फाइबर यूज कर रहे हैं तब भी पोर्ट का टाइप डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप यूटीपी केबल यूज कर रहे हैं तब भी पोर्ट का टाइप। बट अगर आप यूटीपी भी यूज करें, स्विच से स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं यूटीपी से, या स्विच को नोड से कनेक्ट कर रहे हैं यूटीपी से, मान लीजिए यूटीपी ही यूज कर रहे हैं हम स्विच को स्विच से कनेक्ट करने के लिए, और स्विच टू नोड, तब यूटीपी के भी पोर्ट का केबल का टाइप फर्क हो जाता है। यूटीपी केबल है लेकिन एक क्रॉस केबल यूज होगा और एक डायरेक्ट केबल यूज होगा। अगर आप स्विच से स्विच कनेक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस केबल यूज होगा, और अगर आप स्विच से नोड कनेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट केबल यूज होगा। तो केबल का टाइप फर्क हो जाता है। ओके, अगर आप फाइबर यूज कर रहे हैं तब तो पोर्ट अलग टाइप का रहेगा ही। यूटीपी का पोर्ट अलग रहता है RJ45, और फाइबर का पोर्ट अलग रहता है। ओके, सो यू नीड टू डिसाइड, प्लीज रिमेंबर नाउ कि स्विच आप यूज कर रहे हैं, ये टोपोलॉजी है, एंड व्हेन यू आर यूजिंग स्विच यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई वो किस तरह का है। और एक चीज और, अब स्विच दो तरह आजकल, क्योंकि स्विच बोल रहा हूं मैं तो यह एक्सिस स्विच जनरली लेयर 2 रहता है। लेयर 2 जो एक्सिस स्विच है यूजली जो लेयर 2 रहता है, ये 3 टायर स्ट्रक्चर रहता है जनरली। आप एक्सिस स्विच के बाद फिर स्विच लगाएं तो उस नेटवर्क को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप फिर भी एक आधी लगा सकते हैं कि एक्सिस स्विच के बाद एक और एक्सिस स्विच आपने लगा दिया, लेकिन हम उसको बहुत बेहतर नहीं मानते हैं। हम लोग का जो लैन का एनवायरनमेंट है वो जनरली इसी स्ट्रक्चर में रहता है कि यही स्टैंडर्ड है कि कोर स्विच होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एंड देन एक्सेस स्विच। इतना हायरार्की रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, क्या मैं बता रहा था कि एक्सेस स्विच जनरली लेयर 2 स्विच रहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, और कोर स्विच है, ये जनरली लेयर 3 स्विच बोलते हैं हम लोग इनको, लेयर 3 स्विच। ओके, डिफरेंस लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में ये है कि लेयर 2 स्विच केवल लिंक लेयर तक का सपोर्ट करता है, और लेयर 3 स्विच लेयर 2 का भी सपोर्ट करता है और लेयर 3 या आईपी लेयर को भी सपोर्ट करता है। ओके, ये डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सिस स्विच आर लेयर 2 स्विचेस and distribution switches and core switches are layer 3 switch. Okay. So in this tree topology, if you can see कि wire का requirement कम है, पोर्ट का रिक्वायरमेंट मशीन के ऊपर, लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर कम है। ओके, और एक चीज और है फॉरगेट कि एक्सिस से आप, ये मैंने वायर से बनाया है, लेकिन एक्सिस स्विच पे यूजुअली आप वायरलेस भी लगा सकते हैं। एक एक्सिस पॉइंट लगा के एक्सिस स्विच से एक ही लगाया आपने और वायरलेस नोड कनेक्ट कर दिया। ओके, सो दिस कैन आल्सो बी देयर। क्या बता रहा था इससे पहले, हाँ, so in this tree structure if you see, if a particular portion of the network start malfunctioning, or if something happen in a particular portion, other portions work fine. अगर आपका ये वाला पोर्शन, मान लीजिए ये वाला एक्सिस स्विच का पोर्शन खराब हो जाता है कुछ, है ना, तो बाकी सब चलता रहेगा, केवल ये पोर्शन खराब होगा अगर कुछ होता है तो, इस एक्सिस स्विच में कुछ हो जाता है तो, इन केस, राइट। सो एरर अगर आती है कहीं पे या माल फंक्शनिंग होती है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ही इफेक्ट होता है, नॉट द एंटायर लोकल एरिया नेटवर्क, नॉट द एंटायर लैन। ओनली थिंग इज अगर कोर स्विच फेल करता है, देखिए जैसे जैसे आप ट्री में हायरार्की में ऊपर को बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा पोर्शन इफेक्ट करेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच इफेक्ट होता है तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्शन है सब इफेक्ट होगा। बट इफ द कोर स्विच starts malfunctioning, if the core switch gone,
then the whole network goes. So usually in the design, what we do, देखिए हमेशा ही कोई भी डिजाइन हो, किसी भी चीज का डिजाइन हो, we need to find out कि single point of failure क्या है. अगर आप डिजाइन कर रहे हैं नेटवर्क को, then you need to find out कि where is the single point of failure. डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, फेल करता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन फेल करेगा. एक्सिस स्विच है तो एक्सिस स्विच से कनेक्टेड चीजें फेल करेंगी. सो इन योर डिजाइन व्हाट यू नीड टू कीप कि जब आपने मान लीजिए डिजाइन में 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का आपने बनाया कि भाई 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच चाहिए और हमको 4 एक्सिस स्विच चाहिए. नाउ व्हाट यूजुअली वी कीप कि अगर 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस आर देयर, then we'll keep 1 extra. Yeah, agar in case 1 distribution switch goes, then we can replace it. Okay. So in the design, if the money, obviously money matter करती है कि अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो अगर फॉल्ट आता है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कोर स्विच है. तो क्या हम कोर स्विच का डुप्लीकेट रख सकते हैं? अगर हम रख सकते हैं क्योंकि कोर स्विच सबसे महंगा होता है. Maybe 70 lakh, 80 lakhs, like that. Okay, तो कोर स्विच बहुत महंगा होता है, 50 lakhs, 60 lakhs, right? So you need to, whether we, although that is a single point of failure, so what arrangement should we do? अगर स्विच है तो वहां पर एक सबसे इजी अरेंजमेंट है कि आप एक और स्विच कोर स्विच रखें, लेकिन आप 50 लाख आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट इज अ बिग अमाउंट. 60 लाख की है अगर आपकी कोई स्विच ज्यादा महंगी है तो देन शुड वी कीप अनदर वन. मतलब सिंपल बेसिक फंडा यही है कि आप अगर फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट टॉलरेंट है आपका नेटवर्क. इसका मतलब यही है कि अगर कोई कहीं पे कोई फॉल्ट होता है तो दूसरा कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल हो या आपने दूसरा कंपोनेंट ऑनलाइन कॉन्फ़िगर करके लगा रखा हो. कोर स्विच भी आप ये कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप मनी कितना स्पेंड करना चाहते हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच मनी द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू स्पेंड. इफ यू आर योर नेटवर्क इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो जो प्रोडक्शन लाइन के नेटवर्क हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं. तो वहां पर फेलियर टॉलरेट नहीं होता. अगर फेल हो गया नेटवर्क तो प्रोडक्शन पूरा बंद हो जाता है, तो वो टॉलरेट नहीं होता है. तो उसके लिए आपको फिर डिजाइन करना है. देन यू नीड टू इन्वेस्ट. पैसा आपको लगाना है और कितना कम पैसा लगा के वो ऑप्टिमाइजेशन का खेल. जितना आप लोग आजकल बहुत ऑप्टिमाइजेशन बड़ा पॉपुलर टर्म है आजकल, है ना. कोई भी काम है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत यूज भी करते हैं आप लोग. ये किसी प्रॉब्लम में कहाँ हमको ऑप्टिमाइज करना है कि भाई आप पैसा मिनिमम खर्च करें और फॉल्ट टॉलरेंट भी हो आपका नेटवर्क. कि ऐसा ना हो प्रोडक्शन लाइन में कि आपका नेटवर्क, बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क द प्रोडक्शन स्टॉप्स इन केस द नेटवर्क फेल्स. ओके, सो you may plan to keep another core switch. Once you have planned another core switch, now the next plan can be कि should we keep that core switch offline? अगर आपका नेटवर्क टॉलरेट कर सकता है, then the best thing is keep the switch offline. The core switch, which is a very critical component, but if your network can tolerate that amount of time for which the core switch is down, the amount of time in which you can replace that core switch 1 with core switch 2, if it can tolerate, the best policy is keep the another core switch offline. कहीं कनेक्ट नहीं किया
क्या किया, कन्फिगर सेम कर लिया। तो आप जो कोर स्विच चल रहा है, द कन्फिगरेशन, द सेम कन्फिगरेशन कैन बी डन एंड कीप इट ऑफलाइन। ऑफलाइन रहेगा तो उसके डैमेज होने के चांस मिनिमम है। केवल अगर भाई नेचुरल डैमेज हो जाता है, कुछ बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ आ गया, तब तो है ना, वरना जो ऑनलाइन नहीं चल रही है मशीन, उसके डैमेज होने के चांस मिनिमम है, अनलेस अनटिल आपने जहां रखा है उसको वहीं कुछ गड़बड़ ना। ओके, सो व्हाट इज दैट यू कॉन्फ़िगर इट and keep it offline, but then you need that much time कि आपका जो कोर स्विच खराब हुआ उसे हटाया और दूसरा लगाया, ठीक है, कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ा, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हो रहा है। कोर स्विच अगर कंप्यूटर सेंटर का देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, इतने सारे वायर कनेक्टेड है। सो इट्स नॉट एन इजी टास्क कि जो बंदा उसको रख रहा है, मैनेज कर रहा है, ही नीड टू कीप इन कि भाई सैक के लिए जो वायर जा रहा है वो वायर वहीं दूसरे स्विच पे भी लगाना है, इतना तो रखना पड़ेगा। वायरिंग जब हम करते हैं तब हम उसके ऊपर टैगिंग करते हैं। टैगिंग का मतलब है कि लिख लेते हैं कि वायर के ऊपर एक टैग लगाते हैं कि ये क्लैक हाउस जा, ये सैक को जा रहा है, ये गेस्ट हाउस जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जा रहा है। ओके, और उस पोर्ट को ढूंढना पड़ता है कि ये पोर्ट है इस पे, राइट। सो that we can do. Otherwise, if your network, as I said, in production line, industry में अगर आप use कर रहे हैं, production line में, then your course you do not get the time to switch over to a core switch which is offline. No, you need to keep that core switch, which is a standby core switch, online. And you need to configure the switch in such a fashion that if case one switch goes down, automatically it shifts to the another switch. तो automatically जब भी कहा जाता है, as an engineer, please never think it is automatic. इंजीनियर के लिए कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। जिसे पता नहीं है उसके लिए चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। As an engineer, we should use this terminology very consciously. Automatic, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। Automatic, you need to know the mechanism through which we are doing the automation. Automatic कैसे हो रहा है? Okay, so हमने कहा कोर स्विच 1 से कोर स्विच 2 पे जो शिफ्टिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाए। It do not take time. At one switch gets down, the other switch takes up. ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है बेटा। Okay, the similar thing case is with distribution switch. The distribution switch आपने लगाया है, then you need to keep in plan कि ये कम से कम आपके 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, तो एक एक्स्ट्रा रखिए आप, so that you can replace that. ऑफलाइन रिप्लेस करना है तो आप उसको कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, क्योंकि 3-4 है तो हो सकता है आप कॉन्फ़िगर करके ना रख पाए, बट एक एक्स्ट्रा रखें। ओके, या फिर एज आई सेड, अगर प्रोडक्शन लाइन की टाइप है तो डीएस में भी आप 3-4 आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाए और एक स्विच आपने इस तरह का रखा कि कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच फेल करे तो हमेशा उस पर शिफ्ट हो जाए। हाँ, तो ये फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। इसी तरह से एक्सिस स्विच का हाल है। ओके, so this is T topology, and why I have given more time to this, because this is the topology which generally we use. अब इसके बाद एक सिंपल टोपोलॉजी है सबसे, जब हम लोग ईथरनेट पढ़ेंगे लिंक लेयर पे तब उसको यूज करेंगे, क्योंकि प्रपोज ईथरनेट टेक्नोलॉजी इसी टोपोलॉजी पे प्रपोज हुई थी। इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी, कि आपने एक बस बना दी, एक वायर है, बस बंच ऑफ वायर है ना, बस आप कंप्यूटर के अंदर भी लगाते हैं ना,
मेमोरी को, इनपुट आउटपुट यूनिट को और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, बस यूज होती है। अगर आप वैसे देखें तो नेटवर्किंग, मैसेज ट्रांसफर का काम कंप्यूटर के अंदर भी हो रहा है। जितने भी कंपोनेंट है आपके, मेमोरी हो गई, सीपीयू हो गई, इनपुट आउटपुट यूनिट, वो भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं अंदर, बाइट बिट ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। तो बस टोपोलॉजी में ये बस है, एंड देन यूजिंग अ ड्रॉप वायर, नोड इज कनेक्टेड यूजिंग, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है किसी तरह से। यहाँ एक ड्रॉप वायर डाला और ये वायर को इस बस से कनेक्शन करने के लिए इक्विपमेंट यूज होता है। और फिर ये नोड्स आर कनेक्टेड लाइक दिस टू द बस। ये यहाँ पे बस से वायर का कनेक्शन रहता है इस तरह। So this is a bus topology. If somebody is trying to transfer, then others will not. Okay, N1 ने मान लीजिए N1 है, ये N2 है, तो और ये N3 है, and then this N4. So if N1 is transmitting to N2, others cannot transfer. N3 या N4 ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बस, एक बार में एक ही यूज कर सकता है। तो ये बस टोपोलॉजी है, इसमें वायर और भी कम यूज होता है, स्विच से भी कम यूज होता है वायर। ओके, इसका टोपोलॉजी से भी कम होगा। और फिर एक और है जिसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो ये बस है, आजकल कम यूज होती है, और रेशियट की जब हम लोग लिंक लेयर पढ़ेंगे उसमें ईथरनेट तो आज भी यूज होता है ना। ईथरनेट आप लोग सब जानते हो, होपफुली जानते होंगे कि भाई आपका जो कार्ड लगा हुआ है वायर वाला, वो ईथरनेट कार्ड, जो जिसमें आप वायर का नेटवर्क कनेक्शन करते हैं। और फिर है टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसी तरह की होती है, इफ लाइक दिस। ये रिंग है, नोड N1 is connected to N2, is connected to N3 and connected to N4। रिंग में ये रिंग कहीं से ब्रेक हो जाती है तो परेशानी होती है, तो इसके लिए एक और रिंग यूज की जाती है। फॉल्ट, अगर रिंग ब्रेक हो गई तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ऑब्वियस है बस खराब हो गई तो भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, बट दैट चांस है यहाँ, क्योंकि ये रिंग इस तरह से बनी है कि N1 N2 से कनेक्ट है, सीधे कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपका कनेक्शन सीधे है N2 N3 से, तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर रिंग ब्रेक होती है तो पूरा का पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो एक और रिंग डाल देते हैं, 2 रिंग यूज करते हैं। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। हाँ, इसमें मैसेज ट्रांसफर होता है कि N1 N2 को करेगा, N2 N3 को, N3 N4 को, N4 N1 को, इस तरह से ट्रांसफर होता है। और इसमें भी हम लोग जब लिंक लेयर पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं टोकन रिंग। वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, हालांकि आजकल यूज नहीं होती या कम हो गई है, बहुत ऑब्सलीट है एक तरह से, लेकिन हिस्टोरिकल रीजंस और जो भी टेक्नोलॉजी मैं कह रहा हूँ ऑब्सलीट है, लाइक बस वाली भी या रिंग वाली भी। दैट डज नॉट मीन कि ये टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ एक नेटवर्क बनाया और उसको उतनी स्पीड नहीं चाहिए जितनी हमको हमारा काम चलने लायक स्पीड हमें मिल रही है, तो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चलती रहती है ओल्ड टेक्नोलॉजी जिन्हें हम कहते हैं अब ऑब्सलीट है। ठीक है, अब नहीं आ रही, लेकिन हमारा काम चल रहा है और चल रही है, तो दैट टाइप इज देयर। और फिर एक अब जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर ट्री टोपोलॉजी चलती है। ट्री में हम उसी को ट्री के अंदर कोई और टोपोलॉजी को फिट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये भाई कोर है, कोर स्विच है, और कोई स्विच से आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाया, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से एक्सिस स्विच, और ये तो आपका ट्री बन गया। हाँ, और कोर स्विच से भी आप नोड कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से ही या एक्सिस स्विच से ही नोड कनेक्ट कर सकते हैं। नोड को आप कोर स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब इसके अलावा ये एक तरीका भी है कि ये हमारा रिंग कहीं पहले से बना हुआ है ना, ओल्ड टेक्नोलॉजी में हमारा रिंग बना हुआ है,
अब हमने ट्री टोपोलॉजी लगा दी, राइट। सो ट्री वाले को रिंग से जोड़ने के लिए कोई तरीका हो सकता है, कनेक्शन जुगाड़ करके किया जाता है, राइट। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी यूज की जाती है, या डीएस से यहाँ पे आपकी बस है तो बस के साथ पे कनेक्शन कर दिया, ये बस ऑलरेडी थी, बाकी सब ट्री बना दिया अब नई टोपोलॉजी में, और लेकिन बस को भी हमने कहा कि ये भी जितना चल रहा है उतना चलने दो, तो ये यहाँ पे बस से कनेक्ट कर दिया। इसको कहते हैं हाइब्रिड। ट्री में जनरली ट्री यूज होता है, और अगर पुरानी वाली को कहीं से रिंग वाले को या बस वाले को आपने कनेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजीज। These are some topologies which are generally used in networking to construct the local area network LAN. क्वेश्चन हो तो बताइए, वरना 5 मिनट का गैप करते हैं और फिर शुरू करेंगे। If anybody, हाँ बताइए। Sir, जैसे when you construct the figure, I mean in the previous class, you take the hello, am I audible? हाँ ऑडिबल हो, कल वाली ना। यस सर। सर तो आपने सर उसमें राउटर यूज किए थे स्विच के साथ में, और तो स्विच को इजी रहता है कि वही नेक्स्ट एड्रेस लाइक जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि राउटर पे आईपी एड्रेस होता है उसका। आई मीन अगर ट्री टोपोलॉजी में देखें तो स्विच टू स्विच कनेक्ट हो रहे हैं, और एक स्विच के पास दूसरे स्विच में आईपी एड्रेस नहीं होते हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं नेक्स्ट राउटर को? वो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और कोर स्विच मैंने बताया ना कि लेयर 3 स्विच होते हैं, हाँ है ना। अभी पीछे जो टोपोलॉजी है ट्री वाली टोपोलॉजी, अगर उसमें देखो तो ये मैंने बोला लेयर 3 स्विच होते हैं, कोर स्विच और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, है ना। वो लेयर 3 जो है वो राउटर ही है, उसमें स्विच का काम भी करता है वो और राउटिंग का काम भी करता है ना। दो चीजों को कंबाइन कर दिया है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं लेयर 3 स्विच। लेयर 2 जो है वो खाली स्विच तक रहता है, और लेयर 3 राउटर में रहता है। तो राउटर और लेयर 2 और लेयर 3 को वहां कंबाइन कर दिया है, तो इसीलिए उसका नाम इसीलिए चेंज किया हुआ है। कोर स्विच का नाम और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को मैंने लिखा है लेयर 3 स्विच, है ना। तो वो उसमें राउटिंग भी होती है। अच्छा, तो सर ये जनरल है कि एक स्विच में के दोनों एंड किसी भी ऐसे नोड से कनेक्ट होने चाहिए जिनके पास आईपी एड्रेस होता है? एक स्विच के दोनों एंड I mean, ऐसे नोड से कनेक्ट होने चाहिए जिसके पास आईपी एड्रेस होता है। हाँ, आप स्विच पे जनरली हम, क्योंकि फॉरवर्डिंग स्विच लिंक लेयर की फॉरवर्डिंग डिवाइस है, तो वो आईपी एड्रेस यूज नहीं करता है। तो हाँ ठीक है तुम्हारी बात कि दोनों एंड ऐसे उस पर रहे जहाँ कहीं आईपी एड्रेस हो। ये जो एक्सिस स्विच है अगर तुम देखो उस हिसाब से, तो डीएस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हम बोल रहे हैं लेयर 3 का, वहां आईपी एड्रेस रहेगा, कोर स्विच पे भी रहेगा, क्योंकि वो राउटिंग कर रहे हैं। और जो एक्सिस स्विच है वहां नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नोड है इधर, ये जो नोड है इनके कनेक्ट किए हैं हमने एक्सिस स्विच से, इन पे रहेगा आईपी एड्रेस और यहाँ रहेगा। तो उस हिसाब से तुम्हारी बात ठीक है। ओके। चलो 5 मिनट का गैप कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे।
चलिए शुरू करें फिर। तब तक एक फिगर बनाता हूँ, फिगर को देखिए और फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। फिगर आप लोग नेटवर्किंग में बहुत देखेंगे जनरली। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन मुझे लिखना जो है लगता है मैं इनको शशांक से सीखना पड़ेगा कि यार उनका तो अच्छी राइटिंग आती है, मेरी आती नहीं कभी राइटिंग ठीक। सेशन and then you have transport and then you have network and then you have link layer, data link and then you have physical. Okay, similarly at this side, application, presentation, session, transport, and then network, and then data link, and then physical. इसको समझ लीजिए ये मशीन 1 है और ये नोड 1 है N1 और ये नोड 2 है. And then you will see something like this also. Dotted line बना लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए. तो जरा ऐसे मिटा के फिर से कर दो. Okay. So you will see something like this. फिगर को अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, ये सब जरा सा बना लीजिए, बना पाए तो देख तो लीजिए. Data link and physical. So in any node, this is showing OSI reference model. Yesterday also, if you remember, I told you that when we have to transfer a message, there are different tasks which are to be performed. So you can consider it's a bigger task and some smaller functions or smaller tasks has been are involved. So independent smaller tasks and how they are relating, how they are communicating, how they are coordinating with each other. Okay, so the OSI reference model tells about that. Okay, how a bigger task can be divided into smaller tasks, smaller functions, how a big function if you have to do can be, and obviously when you are dividing
you're writing smaller functions, then we need to think of that how they are coordinating when one function is calling to another function, what it is transmitting and what it is getting returned back. Okay, so that is the interrelationship of those functions. So this, the transfer of message in the network, the OSI reference model tells about that, those different functions and how they are coordinating. So we usually call it a layering architecture. Layer architecture in which in OSI reference model, it has been divided into 7 layers. You can think of there are 7 big functions. Okay, and how they are coordinating with each other. On one machine, say on N1, there exist all 7 layers. These layers which we say application layer, the top one, then presentation layer, then session layer, the third one, then transport layer, network layer, data link layer, and physical layer on machine 1. And on machine 2 or N2, the same layers are there: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Okay. And now when a message is transferred, please remember physical layer talk to physical layer. That's why ये जो dotted line बनाई है मैंने बीच में, on machine N1, physical layer is talking to physical layer at machine N2. Data link layer is talking to data link layer at machine N2. Okay, so data link layer is not going to talk to network layer, please remember. Network layer is talking to network layer. Network layer on machine 1 is talking to network layer at machine 2. Transport layer is talking to transport layer, and then application layer is talking to application layer. Okay. इसका एक मतलब ये भी हुआ कि चलिए बात को उस मतलब को समझिएगा. Now see when a packet if to a message is to be transferred, why this type of classification is there of different tasks. See, when we are saying application layer, okay, so application layer generally deal with that portion which is interacting with the user. So application layer has to think of that, okay, when you are interacting with the user, the program which is written on application layer has to think of that when you are interacting with the user, how it should be presented to the user, what input should be, when user is giving some input, how that input should be received, how things should be presentable to the user on one side. Okay, the other side, when we come to presentation और session बीच में छोड़ दीजिए, application से सीधे transport देखिए. Okay, इसको मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये OSI reference model है जो कि जनरली आजकल या पहले से ही यूज होता बताया जाता है, बट यूज कम ही होता है, ये यूज जनरली नहीं होता. दूसरा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं TCP IP मॉडल, जो हम लोग पढ़ेंगे और जो कि पॉपुलर है ना. तो इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, केवल ये कि जो ये 7 लेयर्स हैं, TCP IP में 4 या 5 लेयर्स होती है. तो TCP IP में क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के नीचे फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है सीधे. तो एप्लीकेशन लेयर में आपका प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर इंक्लूड कर दिया. ओके, तो ये जो 3 लेयर है शुरू की, ये वाली 3 लेयर, ये TCP IP में एप्लीकेशन लेयर में कन्वर्ट कर दिया. फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे नेटवर्क लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये नेटवर्क लेयर, और फिर नेटवर्क लेयर के नीचे डेटा लिंक लेयर. ओके, अब 4 लेयर भी है और कहीं कहीं आपको
फिजिकल लेयर अलग भी देखने को मिल जाएगी, और कहीं कहीं ये दोनों कंबाइंड है। एक्चुअली ये पोर्शन जो है वो जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, इसी बोलते हैं जिसको मैं कल बता रहा था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपका ईथरनेट कार्ड जिसको बोलते हैं जनरली, या वाईफाई वाला कार्ड जिसको बोलते हैं आप, हाँ? तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको। ये जनरली लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे एम्बेड रहता है। फिजिकल लेयर और लिंक लेयर इसी कार्ड के ऊपर रहती है, दोनों इसके ऊपर रहती है, मतलब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, वो यहाँ पर है। ओके, एनआईसी के अंदर, और उसके अंदर जो भी चिप लगी है वहां पर उसको लिखा जाता है, प्रोग्राम को रखा जाता है। ओके, सो समटाइम यू विल फाइंड, क्योंकि ये एक ही में कर दिया है इसलिए इस पोर्शन को डेटा लिंक लेयर भी बोल देते हैं, और कई बार कहीं कहीं आप ये अलग अलग मिलेगा कि 5 लेयर भी है या 4 लेयर। ओके, सो ऊपर की एप्लीकेशन लेयर क्योंकि कंबाइंड कर दी है, इसलिए मैं एप्लीकेशन लेयर के बाद सीधे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूँ। Okay. So application layer at one side is providing an interface to the user. जैसे आपका ब्राउजर है, ब्राउजर जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है, जो कि एक साइड में आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरफेस, यूजर को कैसा लिखे, कैसा प्रेजेंट हो, जो मैटर आ रहा है वो कैसे प्रेजेंट हो, वगैरह वगैरह, है ना। जब आप मेल लिखते हैं तो वो जो इनबॉक्स है, वो जो उसके अंदर सेंड बॉक्स है, वो सब एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है कि वो कैसे आपको प्रेजेंट करे कि भाई आपकी मेल है, वो मेल का हेडर कैसे दिखे आपको, कैसा वो उसमें किसने भेजी है वो दिखे, किसको भेज रहे हैं वो दिखे, और कहाँ मैसेज है वो नजर आए, तो वो सब एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है। एक साइड आप देखिए तो एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम इज प्रेजेंटिंग टू द यूजर कि वो इंटरेक्शन के लिए, एंड द अदर साइड इट इज इंटरेक्टिंग विद द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर इफ टेलिंग कि भाई अगर आपको मैसेज भेजना है और मैसेज तो बड़ा है तो उसके पैकेट बनाने हैं, सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज टेकिंग केयर ऑफ कि भाई उसके छोटे छोटे पैकेट बनाइए। और एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर को 10 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, 10 applications are using the same transport layer, so everybody is transferring the message to the transport layer. Now transport layer taking care of कि भाई जो मैसेज आया है इसके छोटे छोटे पैकेट बनाने, और पैकेट बना के नीचे नेटवर्क लेयर को देना, जिससे कि वो उन पैकेट्स को भेज सके। ओके, तो पैकेट बनाने का जो काम है वो सेपरेट कर दिया, नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन लेयर नहीं बना रही, ट्रांसपोर्ट लेयर बना रही है। और एक से ज्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एक से ज्यादा एप्लीकेशन है। आपका ब्राउजर भी चल रहा है जो कि वेब से रिलेटेड है, जिसको हम HTTP बोलते हैं प्रोटोकॉल। टेलनेट आप लोगों ने यूज किया हुआ है, SSH यूज किया हुआ रिमोट लॉगिन करने के लिए, वो भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम है। मेल आप भेज रहे हैं तो मेल भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम है, उसकी जो प्रोटोकॉल है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। तो वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम है। 3 प्रोग्राम, DNS आप यूज कर रहे हैं, DNS की हम लोग बात कर रहे थे, वो भी एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम सेम ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर कोई पैकेट आता है तो उसे ये पता करना पड़ता है कि यार ये पैकेट हमको रिसीवर साइड पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पैकेट आया तो उसको ये भी देखना पड़ता है कि ये पैकेट हम कौन से वाले एप्लीकेशन को दें। ठीक है, तो पैकेट ये फंक्शनलिटी बता रहा हूँ, इस फंक्शनलिटी को अलग कर दिया कि वो पैकेट बना रहे हैं छोटे छोटे और फिर उनको भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर दूसरा काम कर रहा है, वो अपना पूरा प्रोवाइड कर रहा है कैसे, और पूरा मैसेज उसने दे दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को कि भाई अब तुम जानो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके पैकेट बनाए और फिर दूसरी तरफ जब उसके पास
रिसीवर साइड पे पैकेट वो पहुंचे तो उनको कंबाइन भी किया, फिर उस पैकेट को किसी एप्लीकेशन लेयर को देना है ये भी ढूंढा, या ऑर्डर में लगा के ढूंढा कि भाई किस एप्लीकेशन को देना है। फिर नीचे नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर, ये जो 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, these 3 layers are involved in transfer of a packet from source to destination। तो ये जो 3 लेयर हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट ट्रांसफर से डील करती है। मेनली जनरली नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर। फिजिकल लेयर का कंप्यूटर वालों को बहुत कम काम करना पड़ता है। फिजिकल लेयर में ज्यादा चीजें नहीं है कंप्यूटर से के पर्सपेक्टिव से। कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेयर में कुछ खास चीजें नहीं है, बहुत कम है ना। तो इसलिए ही वो फिजिकल लेयर और लिंक लेयर जनरली कंबाइन करके लिंक लेयर ही बोलते हैं। तो नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर जनरली these 2 layers are used in transfer of a single packet। they are concerned about transfer of a single packet। एक पैकेट को ट्रांसफर करने से मतलब है उन्हें। ट्रांसपोर्ट लेयर, वही उसके पास 50 पैकेट है, उसे अपना सोचना है कि भाई 50 पैकेट को हमें कैसे देना है, कैसे ट्रांसफर करना है। दूसरी साइड पे पहुंचेंगे वो 50 पैकेट, तो कैसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर को देने, उससे मतलब है। नेटवर्क लेयर को इससे मतलब नहीं है कि 50 है, 20 है, 50 कितने पैकेट है। ट्रांसपोर्ट लेयर जितने भी भेजे उसको मतलब है नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर को कि भाई एक पैकेट ट्रांसफर कैसे हो सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सो नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर, ये 2 पोर्शन अलग अलग हो गए, 2 अलग फंक्शनैलिटी हो गई। नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर में भी थोड़ा फर्क है। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड कर रहा है कि भाई डेस्टिनेशन किधर है, उसकी डायरेक्शन किधर है, उस डायरेक्शन में पैकेट पहले तो रूट ढूंढे उसका, और once the route has been found, now how the packet should be forwarded so that it can reach to the destination। this whole responsibility is of network layer और IP layer, जिसको कभी-कभी हम लोग बोलते हैं TCP IP मॉडल के अंदर हम उसको नेटवर्क लेयर को IP लेयर बोलते हैं। ओके, so network layer has that responsibility कि one single packet, बाकी सब छोड़ दो, एक भेज दिया तो बाकी भी चले जाएंगे। So it is concentrating on how one packet should be transferred to a destination, to a particular destination, and for that the route should be known। It is have the responsibility to find out the route to a particular destination, and for every destination over the internet, जितनी भी मशीनें इंटरनेट पे कनेक्टेड है, हर एक मशीन से दूसरी मशीन तक के रूट नेटवर्क लेयर ढूंढता है। ओके, सो रूट, and after finding out the route, it is that how the packet should be forwarded so that it can reach to the destination। this is the responsibility of network layer। okay, and link layer, once network layer has told कि भाई इस पैकेट को इस डायरेक्शन में यहाँ भेजना है, और अगली नेक्स्ट नोड, अभी इस नोड पे है पैकेट और जो डेस्टिनेशन है वो आफ्टर 6 nodes है, मान लीजिए from source to destination there are 6 intermediate nodes which are involved। so network layer बता देता है कि next node कौन सा है, in order to reach the packet to the destination, which is the next node where the packet should be transferred। this task is told by the network layer। बहुत clearly समझ लीजिए कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, बीच में 6 और शहर पड़ रहे हैं, ये काम नेटवर्क लेयर का है। और फिर वो बता देगा कि अब अभी आप इलाहाबाद में अगला स्टेशन जो है आपका, वो जहां रुकनी है गाड़ी, वो कानपुर है। ये नेटवर्क लेयर का काम है। ओके, कि नेक्स्ट नोड भी नेटवर्क लेयर फाइंड आउट करता है सो दैट द पैकेट कैन रीच टू दिल्ली। आप दिल्ली पहुंच जाए तो अगला नोड जहां पे गाड़ी रुकनी है, ये नेटवर्क लेयर बताता है कि आप लखनऊ से नहीं जा रहे, कानपुर से होके जा रहे हैं दिल्ली पहुंचने के लिए, या लखनऊ से जाना है तो नेक्स्ट नोड लखनऊ है। तो नेक्स्ट नोड कौन सा है, दैट इज टोल्ड बाय द नेटवर्क लेयर। लिंक लेयर एक बार नेक्स्ट नोड डिसाइड करके दे दिया, अब उस पैकेट को इलाहाबाद से कानपुर तक भेजने का काम लिंक लेयर करता है।
मतलब फ्रॉम दिस नोड जहां पे वो प्रेजेंट है पैकेट और जो नेक्स्ट नोड है वहां तक उसको ट्रांसफर करने का काम लिंक लेयर का है एंड फिजिकल लेयर ऑब्वियसली. लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर दे आर used to transfer the packet from present node to the next node. अभी वाली नोड से नेक्स्ट नोड पे जहां भेजना है वो काम लिंक लेयर करेगी, लेकिन नेक्स्ट नोड कौन सी है ये लिंक लेयर नहीं डिसाइड करता, नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट नोड कौन सा है. 6 नोड के बाद डेस्टिनेशन है, लेकिन 6 नोड हर स्टेप पे अगला नोड कौन सा है ये हर स्टेप पे नेटवर्क लेयर बताता है. लिंक लेयर को कोई मतलब नहीं, उसको तो बता दीजिए कि भाई, फिर वो उसको ट्रांसफर करता है. Okay. तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ब्रॉड डिवीजन है ऑफ फंक्शनैलिटी एंड दैट इज व्हाई दीस लेयर्स हैव बीन क्रिएटेड. ओके, तो एक मशीन के अंदर लेयर्स है और एक लेयर एक मशीन की दूसरी मशीन की लेयर से बात कर रही है. और जैसे कि मैंने कहा कि नेटवर्क पैकेट ट्रांसफर में नेटवर्क और लिंक लेयर ही इन्वॉल्व है, तो जो बीच की नोड्स है जैसे स्विच है और राउटर है उन पे नेटवर्क लेयर तक ही पैकेट जाता है. बस लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तक ही पैकेट पहुंचता है, बाकी पहुंचता ही नहीं. ऊपर ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर नहीं. ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर जब पैकेट लास्ट नोड पे पहुंच जाता है, आपकी क्लाइंट है, आपने www.google.com किया तो पैकेट स्टार्टेड फ्रॉम योर मशीन, ये तो इसमें एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ इन्वॉल्व है. ठीक, उस नोड पे नेटवर्क और लिंक लेयर भी रहती है. उसके बाद पैकेट ने चलना शुरू किया, रीच्ड नेक्स्ट नोड, R1 पे पहुंचा, फिर R2 पे पहुंचा, फिर R3 पे पहुंचा, 2-3 नोड के शुरू जा रहा है. तो वो जब फॉरवर्डिंग हो रही है केवल नेटवर्क लेयर लिंक लेयर लिंक लेयर बना के हो रही है, वहां ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है. वंस द पैकेट रीचेस टू द गूगल सर्वर, क्लाइंट से आप क्लाइंट है और गूगल को आप ब्राउज कर रहे हैं, तो गूगल सर्वर तक जब आपका वो पैकेट पहुंच गया तब वो एंड नोड है, आखिर नोड जहां तक पहुंचना है पैकेट को, वहां पर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर भी इन्वॉल्व है. इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि एंड टू एंड कनेक्शन पे जब आखिरी कनेक्शन पे पहुंच जाता है तब ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर इस्तेमाल होती है, लेकिन जब बीच वाले नोड्स पे पैकेट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तब ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर यूज जनरली नहीं होती, फॉरवर्डिंग यूज नहीं होती. पैकेट एक बार पहुंच जाए तब. तो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है. अब इसके अंदर एक जनरली आपको बताया जाए कि जब भी एक पैकेट एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाता है, एक लेयर से दूसरी लेयर पे पैकेट जाने का मतलब क्या होता है, वो ये है कि भाई एक प्रोग्राम है, चलिए तो मैं अभी बताता हूँ उसको, पर इसे थोड़ा सा इधर मिटा दूं तो फिर बताऊंगा आपको कि एक लेयर से दूसरी लेयर पे जब पैकेट जाता है तो उसमें कुछ हेडर ऐड होते हैं और जब वो पहुंच जाता है तब कुछ हेडर हटाए जाते हैं. तो पैकेट के अंदर जो हेडर्स है, कल हम लोगों ने देखा था ना कि एक डेटा पोर्शन था पैकेट में और फिर आईपी एड्रेस ऐड हुआ और लिंक लेयर का एड्रेस ऐड हुआ, तो उसको आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का हेडर बोलते हैं. जहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड किया था उसको बोलते हैं हेडर, है वो नेटवर्क लेयर का. तो जहाँ पे हमने ऐड किया था लिंक लेयर का एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, उसको बोलते हैं लिंक लेयर का हेडर, है ना. तो हर लेयर का अपना एक हेडर होता है. हेडर का मतलब है कि उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जिसको उस लेयर का प्रोग्राम ही समझता है. गेटिंग माय पॉइंट? द लेयर which is finally a program. प्लीज रिमेम्बर, ये जो बना रहा हूं यहाँ एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और इनकी एक स्टैक टाइप की दिख रही है आपको. तो ये स्टैक कहीं स्टैक की तरह एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं हार्डवेयर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता. ये सब प्रोग्राम्स है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं. ये जो लाइन स्टैक की दिख रही है आपको, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन की लाइनें हैं कि ये इसको कॉल कर सकता है और ये प्रोग्राम इसको कॉल कर सकता है. ये मतलब है इनका. तो क्या बताने वाला था, हाँ हेडर वाला पोर्शन बताता था. ओके,
हेडर वाला पोर्शन था, आपको कई जगह ये इस तरह से दिखाया जाएगा। एक मशीन पे पैकेट जो है, जो सोर्स है, जब मूव करता है तो एप्लीकेशन लेयर से लिंक लेयर तक मूव करता है या फिजिकल लेयर तक, और फिर जब रिसीवर पे पहुंचता है, फाइनली जब रिसीवर पे पहुंचता है पैकेट, तो फिर लिंक लेयर नीचे से और ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक मूव करता है। और उसको हम लोग इस तरह से जनरली दिखाते हैं कि एक पैकेट नोड N1 पर है। हाँ, ये नोड N1 पर जो पैकेट है, तो पैकेट में ऑब्वियस है कि कुछ डेटा होगा, क्योंकि मैसेज हैज बीन ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट। तो अगर 10 पीसेस हैं एक मैसेज के, सो एवरी पीस कंटेन्स सम डेटा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि डेटा के अंदर क्या है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि उस डेटा को हमको ट्रांसफर करना है। नेटवर्क में हम डेटा को के अंदर के में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, as I said. So N1 पर this portion is data portion, okay. और अब इस डेटा पोर्शन पे एप्लीकेशन ने अपना एक हेडर लगाया जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन हेडर, एप्लीकेशन लेयर का हेडर। हाँ, और मैं इन तीनों को मैंने कंबाइंड एप्लीकेशन लेयर पे ही कर दिया है, तो मैं प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर लिखूंगा नहीं, बता दूंगा बस थोड़ा सा वैसा ही रेफरेंस मॉडल की वजह से, बाकी हम एप्लीकेशन लेयर ही लिखेंगे। हाँ, तो ये तीनों का तीनों जितना पोर्शन है इसको हम एप्लीकेशन लेयर यूज करेंगे। तो इसका हेडर यूज कर दिया। अब ये हेडर क्या है, इसको एच लेयर एप्लीकेशन हेडर को AH कर देता हूँ, है ना, एप्लीकेशन हेडर। एप्लीकेशन हेडर क्या है, मान लीजिए यू हैव रिटन अ मेल, तो मेल में दो पोर्शन है, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपने मेल जब लिखी तो उसमें सबसे पहले लिखना पड़ता है टू whom, copy to whom, subject portion. So that portion is not the message. मैसेज तो नहीं है, मैसेज तो वो है जो आप बॉडी के अंदर लिखते हैं कि भाई ये चीज है और दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, जो भी व्हाटएवर मैसेज यू आर टाइपिंग इनसाइड द बॉडी, that is the message which you want to communicate to the person to whom you are trying to send that mail. But in that mail we are putting to whom we need to put, so we are putting the address rajesh@iitk.ac.in, कॉपी टू, किसी कुछ और लोगों को भी भेजना है साथ में तो कॉपी टू में कर दिया, फिर एक सब्जेक्ट लिखा ऊपर। So all that portion is not the message which we want to communicate to the Rajesh. वो कब क्या है, वो एड्रेस पोर्शन है। If you are writing rajesh@iitk.ac.in, इसका मतलब IITK में कोई बंदा है जिसका नाम राजेश है, उसका उस मशीन पे, जो मशीन जहाँ पे की मेल रिसीव हो रही है जिस मशीन पे IITK में, उस मशीन पे लॉगिन है with the name of Rajesh. Okay, so now if you see in that mail there are two portions. One is your message which we are saying if data. ये मेल का जो मैसेज वाला पोर्शन है ये डेटा है, और जो इसमें जहां आपने लिखा है टू, फ्रॉम, कॉपी टू, सब्जेक्ट, दैट ऑल पोर्शन इज एप्लीकेशन लेयर हेडर। ओके, सो ये एप्लीकेशन लेयर का हेडर है, तो यही हेडर है। सो एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम एप्लीकेशन लेयर के हेडर को ऐड करता है, क्योंकि जब वो मैसेज N2 पर पहुंचेगा, N2 is a machine, is a mail server in IITK, and N1 is a machine in MNIT जहां से आप मेल भेज रहे हैं, ठीक है। तो N2 पे जब वो पहुंचेगा तो एप्लीकेशन का प्रोग्राम ही उस हेडर को समझ पाएगा कि राजेश @ ये जो @ का सिंबल है, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम ही समझ पाएगा वहां पर, जो कि मेल से रिलेटेड प्रोग्राम होगा @IITK मशीन N2 पर, ठीक। तो ये हुआ हेडर, एप्लीकेशन का हेडर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए।
हाँ, अब क्या हुआ, एज आई सेड कि एप्लीकेशन वाले सारे पैकेट अपना ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जब पैकेट नीचे आया, और ये दोनों तरफ को इसलिए दिखा रहा हूँ कि रिसीवर पे ट्रांसपोर्ट लेयर से वापस जाता है ऊपर, और सेंडर पे एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये वाला पूरा पोर्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए हो गया डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं समझता कि राजेश @ इसका क्या मतलब है, उसे कोई लेना ही देना नहीं है उससे। तो वो पोर्शन जो उसे नहीं समझता है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोग्राम, वो डेटा हो गया। और ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स इट्स ओन हेडर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर एड्स इट्स ओन हेडर, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोग्राम ही समझता है। ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास 10 है, 50 पैकेट है, जितने भी उसने ऊपर से जो भी मैसेज आया था उसके स्मॉलर पीसेस बनाए। और अभी ये एक ही पैकेट दिखा रहा हूं मैं, बट ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन लेयर ने उसे बड़ा मैसेज दिया और इसने कई सारे उसके पैकेट बना दिए, तो वो अपना हेडर ऐड करता है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पोर्ट नंबर का नाम सुना है? यस सर। सुना है ना पोर्ट नंबर का नाम। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर ऐड करते हैं। पोर्ट नंबर का मतलब यही है कि भाई जब वो रिसीवर पे पहुंचता है तो पोर्ट नंबर एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अगर मेल है तो पोर्ट नंबर 25 यूज करता है। मेल की जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, तो जब रिसीवर पे when the packet will reach to the receiver, then packet should be transferred to the mail, the program which is related to mail, the application program which is running on mail server. तो उस पैकेट को वहां ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को पता कैसे लगेगा किसको कहना, कौन से वाले प्रोग्राम को पैकेट भेजना है? सो पोर्ट नंबर टेल्स कि भाई इस वाले प्रोग्राम को भेजना है। सो इफ देयर आर 10 प्रोग्राम्स, 10 एप्लीकेशंस, लाइक एक वेब प्रोग्राम है, वेब से रिलेटेड प्रोग्राम है, एक मेल से रिलेटेड प्रोग्राम है, एक SSH से रिलेटेड प्रोग्राम है, और तीनों एक ही मशीन पे चल रहे हैं, तो पैकेट तो एक मशीन पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया जो कि IP एड्रेस से पहुंचता है। लेकिन आफ्टर दैट कौन से वाले एप्लीकेशन को देना है ये पोर्ट नंबर बताता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर यूज होता है। तो ये जो हेडर है इसके अंदर पोर्ट नंबर लिखा रहता है। और भी चीजें रहती हैं, बट पोर्ट नंबर मेन है, इसलिए मैं आपको पोर्ट नंबर बता रहा हूँ। ओके, तो पोर्ट नंबर एक तरह का आइडेंटिफायर है, एक तरह का एड्रेस है विच इज यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड द रीजन, देखिए कहीं पे भी मैं आपको कहता हूँ कभी भी, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि एड्रेस अगर हम यूज कर रहे हैं कहीं पे भी, wherever we are using, I'm saying कि भाई एड्रेस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि that means in some packet we want to send a packet, we want to transfer something, and there is a possibility of multiple receivers, एक से ज्यादा लोग रिसीवर हो सकते हैं। तब हमको एड्रेस लिखना पड़ता है कि भाई इस आदमी का नाम ये है और इसका रूम नंबर ये है और इसका हॉस्टल ये है, तो इसको ये पैकेट इसी को देना, क्योंकि देयर आर मल्टीपल रिसीवर, देयर मे बी पॉसिबली मल्टीपल रिसीवर, एंड जब कहीं पे भी मल्टीपल रिसीवर्स होंगे तो आपको एक आइडेंटिफायर यूज करना पड़ेगा जिसे हम एड्रेस बोलेंगे। यहाँ पे पोर्ट नंबर एज ए एड्रेस यूज होता है। क्यों? क्योंकि रिसीवर पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, तो कौन से वाले, मेल वाले एप्लीकेशन को ही, जो आपका मेल वाला प्रोग्राम रन हो रहा है उसी को इस पैकेट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये मेल से रिलेटेड प्रोग्राम है। ओके, सो पोर्ट नंबर 25 is used inside the transport layer so that at the receiving end the transport layer can transfer the packet to the mail program. It should not transfer the packet to the web program. So ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में उस पोर्ट नंबर को ऐड करना पड़ता है।
तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो ये एक हेडर ऐड हुआ। अब इसको इसने ट्रांसफर किया नेटवर्क लेयर पे। अभी ये कहाँ गया भाई, फिर यहाँ से दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, यहाँ आ गया नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर नहीं जानता कि यार ये पोर्ट नंबर क्या है। नेटवर्क लेयर को कोई मतलब नहीं पोर्ट नंबर और पोर्ट नंबर से, वो पहचानता ही नहीं पोर्ट नंबर क्या है, वो तो खाली आईपी एड्रेस जानता है क्या है ना। तो नेटवर्क लेयर जो है या आईपी लेयर, वो आईपी एड्रेस जानता है, उसे पोर्ट नंबर से मतलब ही नहीं, वो उसको पढ़ ही नहीं सकता, राइट। सो फॉर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, एप्लीकेशन लेयर हेडर, राजेश @ उसको भी नहीं मतलब, वो उसका प्रोग्राम समझ ही नहीं सकता उसको, नेटवर्क लेयर का, ठीक है। उसे कोई लेना देना नहीं, उसके जो प्रोग्राम लिखा गया है वो उसको पास नहीं कर सकता। तो वो सब डेटा हो गया, क्योंकि वो उसके अंदर देख ही नहीं रहा यार इसमें क्या है, उसे कोई मतलब नहीं। नेटवर्क लेयर का प्रोग्राम अपना एक हेडर ऐड करता है, जिसको हम बोलेंगे नेटवर्क लेयर हेडर, नेटवर्क लेयर हेडर। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया, सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस रहता है, ऊपर लिखा था राजेश @iitk.ac.in, लेकिन iitk.ac.in कौन सी मशीन है, इसका कोई आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहां पर नेटवर्क लेयर पे वो आईपी एड्रेस यहाँ लिखा जाता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, और जो भेज रहा है उसका सोर्स का भी आईपी एड्रेस, है ना। बाकी और चीजें भी रहती हैं नेटवर्क लेयर के हेडर में, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने आपको बताया, जिससे कि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हेडर ऐड होता है उस पैकेट में, जिससे कि अब नेटवर्क लेयर के हेडर ऐड होने से क्या हुआ कि नेटवर्क लेयर पैकेट को इट ट्रांसफर्स टू द डेस्टिनेशन, एंड डेस्टिनेशन मशीन, नेटवर्क लेयर का काम है एक पैकेट को डेस्टिनेशन मशीन तक ट्रांसफर कर देना। उसका काम ये नहीं है कि मशीन के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। So network layer is only interested to find out that machine over the internet and transfer the packet to the internet, to the machine, destination machine, that it's rajesh@iitk.ac.in। तो iitk.ac.in का जो मेल सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, वहां तक पैकेट को पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का है। बाकी मेल वाले सर्वर, मेल वाले एप्लीकेशन को प्रोग्राम पैकेट जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, उससे लेना ही देना नहीं नेटवर्क लेयर को कुछ। तो वो केवल मशीन तक पैकेट पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेयर, डेस्टिनेशन मशीन तक, वही उसका काम है। ओके, सो आईपी एड्रेस यहाँ यूज करता है वो, क्योंकि अगेन इट्स एन एड्रेस, आईपी एड्रेस व्हिच इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ मशीन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी मशीनें हैं, किसी मशीन को पैकेट जा सकता है, बट आईपी एड्रेस टेल्स कि ये वाली मशीन है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये एड्रेस ऐड हुआ। Now as I said, नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या है कि वो नेक्स्ट हॉप बताता है, डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंचाने के लिए पैकेट को अगला हॉप कौन सा है। डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में 2-3 अगर हॉप है, हॉप का मतलब है कि अगला नोड कौन सा है, अगला राउटर या अगला अगला राउटर कौन सा है, ये बताना पड़ता है ना। तो नेक्स्ट हॉप कौन सा है ये नेटवर्क लेयर बताता है, बट नेटवर्क लेयर पैकेट को डिलीवर नहीं करता है नेक्स्ट हॉप को। नेटवर्क लेयर नहीं डिलीवर करेगा, वो डेटा लिंक लेयर को कह देगा कि भाई डिलीवर तुम करो नेक्स्ट हॉप को। मैंने बता दिया कि इस हॉप को देना है पैकेट, लेकिन डिलीवर करने का काम आप करेंगे, मैं नहीं। हाँ, तो नेटवर्क लेयर के नीचे लिंक लेयर है, और जैसे मैंने कहा कि लिंक लेयर, इस वाले को भी जरा सा मिटा दो, यहाँ से बीच में आ रहा है। लिंक लेयर के पास पैकेट आया, और लिंक लेयर
ये पूरा पूरा पैकेट लिंक लेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस। लिंक लेयर को मतलब ही नहीं है आईपी एड्रेस। तो लिंक लेयर के लिए आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और आपका मेल का एड्रेस rajesh@iitk.ac.in, इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए ये सब डेटा है। जैसे अंदर मैसेज में कुछ भी पड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई डाकियो क्या मतलब है कि आपके लिफाफे में क्या है, वही बात है। तो ये अपना लिंक लेयर का हेडर लगाता है। डेटा लिंक लेयर का हेडर लगा देता है। डेटा लिंक लेयर हेडर, और ये यूज करता है फिजिकल एड्रेस। इसका मतलब जब एक नेटवर्क से जब नेक्स्ट मशीन को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां बहुत सारी मशीनें कनेक्टेड है अलग अलग हार्डवेयर एड्रेस की। ओके, तो डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस चाहिए होता है। तो सोर्स हार्डवेयर एड्रेस जो मशीन भेज रही है वो, और जो नेक्स्ट नोड है, इमीडिएट नेक्स्ट नोड, जो कि नेटवर्क लेयर ने बताया है कि भाई इसको देना है पैकेट, तो उसका हार्डवेयर एड्रेस पता करना और उसका हार्डवेयर एड्रेस में लिखना और उसको फिर ट्रांसफर करना उस हार्डवेयर एड्रेस पे, ये काम लिंक लेयर का है। तो इसलिए उसने अपना हेडर ऐड किया। उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जब ट्रांसफर करेगा अगले नोड को, तो अगले नोड का लिंक लेयर ही इस एड्रेस को, उस पे जो अगला नोड होगा वहां पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ होगा लिंक लेयर का, वही उसको समझ पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि लिंक लेयर ही लिंक लेयर से बात कर रहा है, क्योंकि उधर लिंक लेयर का प्रोग्राम, इधर भेजने वाला लिंक लेयर का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेडर में जो लिखा हुआ है, जो हार्डवेयर एड्रेस है, उसको रिकॉग्नाइज लिंक लेयर का प्रोग्राम ही करेगा। नेटवर्क लेयर का प्रोग्राम लिखा ही नहीं गया कि हार्डवेयर एड्रेस को पढ़ सके। भाई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, प्रोग्राम लिख रहे हैं, डेटा का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसको आप स्कैन कर रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं कि यार ये हार्डवेयर का एड्रेस है। मैंने अगर आपको याद हो बताया था कि उसमें जो 48 बाइट का हार्डवेयर एड्रेस होता है, और हर बाइट जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर से डिनोट होती है। हाँ, तो अगर लिखा हुआ है 4A, तो उसको वही प्रोग्राम पढ़ पाएगा। आईपी एड्रेस के प्रोग्राम को पढ़ने के लिए अलग आपने प्रोग्राम, आईपी एड्रेस को पढ़ने के लिए अलग प्रोग्राम बनाया है, राइट। सो दैट प्रोग्राम कैन नॉट रीड द हार्डवेयर एड्रेस, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही अलग है। वो 48 बिट का है, वो 32 बिट का है। वो डेसिमल में उस तरह से लिखा गया, ये इस तरह से लिखा गया है। ओके, तो when we are saying कि डेटा लिंक लेयर से अदर नेक्स्ट नोड पे बात कर रही है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट नोड पे जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर एड्रेस को वही समझता है, लिंक लेयर वाला प्रोग्राम। ये मतलब है इसकी टॉकिंग का। नेटवर्क लेयर हम कह रहे हैं नेटवर्क लेयर से बात कर रही है, इसका मतलब ये है कि जब वो प्रोग्राम नेटवर्क नेक्स्ट नोड पे पहुंच गया, फिर वहां पे फिर से उसको हार्डवेयर आईपी एड्रेस को देखना पड़ा, तो वो नेटवर्क लेयर का प्रोग्राम ही देख पाएगा, लिंक लेयर का नहीं देख पाएगा। तो ये ऐड हो गया लिंक लेयर। अब आप फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर का एड्रेस भी ऐड कर दीजिए, और वरना यहीं तक रहने दीजिए, 4 लेयर लिंक लेयर तक ही रहने दीजिए। ठीक, तो इस तरह से एक मशीन के अंदर इस तरह से पैकेट जब मूव करता है तो वो ऐड होते हैं हेडर्स, एप्लीकेशन लेयर हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, नेटवर्क लेयर हेडर, लिंक लेयर हेडर। हाँ, और इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सिंपल ये है कि भैया ये अलग अलग प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर रहा है, और जिसे हम कह रहे हैं पैकेट, वो जब आप किसी प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो पैरामीटर पास करते हैं, पैकेट वही पैरामीटर है। आप अंदर देखेंगे पैकेट के जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना सी लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप अलग अलग फील्ड लिखते हैं। हाँ? और जब आपको उस स्ट्रक्चर को दूसरे प्रोग्राम को पास करना पड़े तो हम पास कर सकते हैं। तो पैकेट वही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसके अंदर अलग अलग फील्ड है। ओके, आपने एक प्रोग्राम लिखा जो एक पर्टिकुलर फील्ड को ही आइडेंटिफाई कर सकता है, बाकी क्या है उसके अंदर हमें मतलब नहीं है। वो कितना फील्ड है वो बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि भाई यहां से यहां तक ये लिंक लेयर का फील्ड है, और लिंक लेयर का प्रोग्राम उतने ही फील्ड को पढ़ सकता है।
दैट्स इट। ठीक है, तो उसको जो पैरामीटर पासिंग हो रही है वो पैकेट है, लेकिन उस पूरे पैरामीटर में, उस पूरा पैकेट में जो हम पास कर रहे हैं उसमें कुछ पोर्शन ही केवल उसके काम का है प्रोग्राम के, बाकी पोर्शन से उसे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये पैरामीटर पासिंग की है जो हम कह रहे हैं इतनी देर से पैकेट। जब एक प्रोग्राम दूसरे को कॉल किया, और आपको बात मालूम है जब फंक्शन कॉल करते हैं पैरामीटर पास करते हैं। तो चलिए अभी आज टाइम हो गया, इतना है। अगले लेक्चर पे जो रिसीवर साइड में उल्टा काम होता है कि लिंक लेयर पे पहुंचा तो फिर वो नेटवर्क लेयर को पैकेट को ट्रांसफर कर देता है ना। और क्योंकि लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ही इन्वॉल्व होते हैं पैकेट फॉरवर्डिंग में, तो वो कई हॉप तक जहां जहां राउटर लगे हुए हैं वहां तक वो लिंक लेयर नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ऐसे चलता है कि लिंक लेयर पे आया पैकेट, उसने अपना देखा, आ गया, तो फिर उसने नेटवर्क लेयर को पास कर दिया। अब नेटवर्क लेयर बताएगा कि अगला हॉप कौन सा है, और फिर वो अगला हॉप जब उसने बता दिया तो फिर वो फिर पैकेट को उसी राउटर पे लिंक लेयर में पास कर देता है। तो रिसीवर वाला पोर्शन अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसमें हेडर रिमूव होते जाते हैं और वो ऊपर चलता जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर तक ऊपर केवल एंड पॉइंट पे जाता है। जब आखिर में पहुंच जाएगा, जब वो गूगल के सर्वर पे पहुंच जाएगा, तभी वो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर तक ऊपर बढ़ेगा पैकेट। उनके प्रोग्राम कॉल होंगे, वरना खाली लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के प्रोग्राम ही राउटर्स पे कॉल होते हैं। ठीक है, तो अब बंद करता हूँ। कुछ का कोई क्वेश्चन का तो टाइम नहीं रहा अभी। आप लोग अगर हो तो बता दीजिए, बट जल्दी से बता दूंगा अगर कुछ होगा तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एनी क्वेश्चन? चलिए नहीं है तो फिर बंद करते हैं। ठीक, लेट अस क्लोज।